let me tell you guys something that don't worry about the recording of the event. The recording of the event would be provided on the YouTube channel. We'll be sharing the link of the YouTube channel with the certificates that we'll be providing you at the end of this boot camp in your emails. All the recordings of the bootcamp would be provided at our YouTube channel. Uh, Apart from that, the feedback form, like the attendance form, as many of you say that, would be shared in the end of the speaker session. That is called the feedback form, not that attendance form. It would be shared at the end of the session, and all those who would fill up that feedback form would be given the certificates of this particular session. Okay, and the third thing is, don't worry about the certificates, don't worry about the, like, don't worry about the attendance, you will get it. अगर नहीं मिलता है हमारे पास आ जाओ, हम आपको दे देंगे. Focus on learning part, right? We are arranging these workshops, we are arranging these boot camps so that you guys may learn something new, you guys may come up with something creative, right? We hope that you guys may learn something new, you guys may come up with something good from this boot camp. You guys may take something good with you. And yeah, without I think I went above my time. You may start now, Zubair bhai. Bismillah. हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, Zubair bhai, you are audible, but आप माइक थोड़ा मुंह के करीब कर लें तो आपकी आवाज़ और क्लियर आ जाएगी. चलें, ठीक है जी. होप अभी अच्छी आ रही होगी. Yes, So, Assalamu alaikum and good evening everybody. Hope all of you guys are doing well. आज का जो हमारा सेशन है, that's all about the DEED, defense in depth. It's actually a defensive approach towards cyber security. So, I'm Zubair Ansari. I'm the founder of Architect Solution, a cybersecurity firm. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम देखेंगे, दैट्स अबाउट द डिफेंस इन डेप्थ, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे तो वो अपने इन्वायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं. Let's read a formal definition first. Defense in depth is a practical strategy for achieving information assurance in today's highly networked environment. देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, डिफेंस करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को, बहुत सारे लेयर्स को फॉलो करती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाती है. सो डिफेंस इन डेप्थ इन वही प्रोटोकॉल्स की एक कलेक्शन है जिससे वो अपने नेटवर्क को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि ये जो डिफेंस इन डेप्थ है, इसमें जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई किए जाते हैं या जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे कॉमन लेयर्स हैं जो कि हर कोई इसको फॉलो कर रहा होता है. लेट सपोज अगर मैं बात करूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं एक दो ऑर्गेनाइजेशंस का, अगर मैं बात करता हूं कि एक यूनिवर्सिटी है और एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों की जो स्ट्रैटेजीज होंगी अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, तो उनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी, ठीक है. एग्जैक्टली ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि वो दोनों सेम को ही फॉलो करे, ठीक है. सो तो हर वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफेंस इन डेप्थ की जो लेयर्स है वो डिफरेंट होती है. लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास कॉमन लेयर्स है जो कि हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं, और वो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसको उस पर काम करना ज़रूरी होता है. So these are the six factors or layers, which is data layer or data defense, then second application, third host, fourth network, fifth physical, and sixth जो हमारे पास है procedures, policies and awareness. अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ पर एक बात बता दूं, हमारे इस सेशन के दौरान कोई हम प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे. एट द एंड ऑफ द सेशन हम जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, वो ताकि काफ़ी आई होप कि काफ़ी आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और काफ़ी नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे. सो फर्स्ट लेयर ऑफ द DEED is actually layer 1, data defense. Business data is one of the most valuable resource in many organizations. If data were to be damaged, lost, exposed to a competitor,
देखिए डेटा जो है ना, जिस तरह के आप सारे आई थिंक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, तो डेटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको एक मैलिशियस अटैकर या मैलिशियस ऑर्गेनाइजेशन आके उसको डैमेज कर सकती है, लॉस कर सकते हैं आपके डेटा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन डेटा को जो एक कंपनी जिसके साथ डील कर रही होती है, किस तरह से जो है ना उसको सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम जो अपनी प्राइवेट फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, जो कि मे भी हो सकता है कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर रहे हो या हमारे क्लाइंट्स को हमें देना पड़ रहा हो, लेकिन वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट कि वी मस्ट हैव टू यूज द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सेकंड जो हमारे पास स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इंक्रिप्शन। और उसके बाद एन इफेक्टिव बैकअप एंड रिस्टोर स्ट्रैटेजी। देखिए ये इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा कि हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में भी हो सकती है, और हमसे कोई मिस्टेक आप यूँ कह सकते हैं कि कोई वल्नरेबिलिटी जो है वो इंक्रिप्शन सिस्टम में भी हो सकता है। तो थर्ड स्ट्रैटेजिक प्लान जो हमारा होना चाहिए, दैट इज द इफेक्टिव बैकअप एंड रिस्टोर स्ट्रैटेजी। सेकेंड लेयर पे हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन डिफेंस। ठीक है जी, कि जो एप्लीकेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि उसमें कोई हमारे पास में लाइबिलिटी ऐसी हो जो कि एक अटैकर जिसके थ्रू हमारे सिस्टम को अटैक कर सकता है। तो सबसे जो मेजर अटैक्स है जो मोस्टली ज़्यादा हैपन्स हुए हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जुबैर भाई, हेलो जी। जुबैर भाई, इस कौन सी स्क्रीन पर है? आ, आपके साथ, सॉरी टू से, आपके साथ कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? पीपीटी की नहीं हो रही? एक शेयर हो रही है, आई थिंक सो वी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। Check about it. Actually, that is the first experience with Microsoft Meet. ऐसा करते मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, वहां पे आई थिंक सही बेस्ट नजर आ जाएगा। अब आ रही है स्क्रीन नजर आपको? ये आप कर लें, दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द अटैक्स विच कैन बी हैपेंस। हमारे पास मैंने तीन मेजर अटैक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। फर्स्ट इज DDoS अटैक, सेकंड इज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, एंड थर्ड इज सीक्वेंस इंजेक्शन। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, व्हाट इज डिडोस अटैक एंड व्हाट इज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल एंड व्हाट इज सीक्वेंस इंजेक्शन। तो ये वो अटैक्स है जो कि ज़्यादातर जो है ना कंपनीज इसके साथ डील कर रही होती है। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रीचेस हुए इस अटैक पे। सो इस अटैक को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी हैव थ्री पॉइंट्स एक्चुअली। फर्स्ट हमारे पास है ऑथेंटिकेशन। प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें या सर्वर साइड की बात करें, तो दोनों साइड्स को हमें स्ट्रॉन्ग करनी है विद ऑथेंटिकेशन। सेकंड, ऑथराइजेशन। क्योंकि ऑथेंटिकेशन भी हम एक इसको एक सिक्योर फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम ऑथराइजेशन के भी तरफ आना चाहिए, ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है वो फर्दर और मजीद उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। देन वी हैव पासवर्ड पॉलिसीज। ठीक है जी। सो पासवर्ड पॉलिसीज से आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि लेट सपोज सबसे पहली बात इसमें ये आ जाती है कि इंक्रिप्शन आ जाती है। देन ये कि जो है ना बहुत सारे इस तरह के और फैक्टर्स आ जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को हम नहीं देखें, नहीं रखें, उसको चेंज करें। या इस तरह से जो हम मोस्टली हम बीइंग साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, हम चेक करते हैं सबसे पहले किसी कोई पासवर्ड बनाने से पहले, अगर इनक्रिप्टेड है तब भी वो जाके हम जो गूगल में जो हमारे पासवर्ड्स की लिस्ट है उसको उसमें से कोई मैच तो नहीं हो रही। So then we have layer number 3 which is host defense. जिस तरह से हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे नेटवर्क में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल काइंड्स के हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी। तो हो सकता है कि उन सॉफ्टवेयर्स में कोई वल्नरेबिलिटी हो और एक अटैकर जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू आके अटैक करे। सो देन हमारे पास कुछ प्रोटेक्शंस के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। First is operating system hardening, second is antivirus, third is patch management, patches are kept to up to date, and then is effective auditing. फिर हमारे पास है लेयर नंबर 4, नेटवर्क डिफेंस, विच इज मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि अफेक्टेड एरिया जो है वो यही है। ठीक है जी। और ये आप यूं भी कह सकते हैं कि ये हैकर्स के लिए एक पीस ऑफ केक होता है। और क्योंकि सबसे पहले अगर एक अटैकर जाके अगर उस नेटवर्क को टेक ओवर करता है, तो इट्स मीन कि उस हैकर ने सिर्फ नेटवर्क को टेक ओवर नहीं किया बल्कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर किया है, क्योंकि उसकी सारी कम्युनिकेशन, उनके सारी डेटा ट्रांसमिशन वो एक अटैकर के कंट्रोल में होता है। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो कि मोस्टली सिक्योर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स। सबसे हर सिस्टम में, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइंट साइड, तो हमें ये चीज़ देखती है कि ऑथेंटिकेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, ठीक है जी। नंबर थर्ड इज फिजिकली सिक्योर इक्विपमेंट इन पोर्ट्स। अच्छा, ये एक बड़ी पॉइंट है फिजिकली जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, कि ये जो मोस्टली हमने बहुत सारे इस तरह की न्यूज़ देखे हैं कि कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो किसी हैकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो फिजिकली जो है ना, एक हैकर अगर बड़े पैमाने पे कोई अटैकिंग, जो हम यूँ कह सकते हैं कि गैंग है, वो अटैक करना चाहता है, तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि वो फिजिकली सिस्टम को ले, ठीक है जी। तो उसके लिए वो एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट करते हैं, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ऑफर्स करते हैं, फिर वो एम्प्लॉयज़ उस गलत एक एक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फिजिकल सिक्योरिटी। और उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी में जो पोर्ट्स हैं, हमारी जो राउटिंग की सिक्योरिटीज़ हैं, स्विचेस की सिक्योरिटी है, उसको भी हम फोकस दे सकते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर अवर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। Fourth is establish cybersecurity rules for your employees and make them aware of the important role they play in security. ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि हमारे बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाता है हमारे लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिक अवेयरनेस हमारे एम्प्लॉयज़ को होनी चाहिए कि अचानक से अगर कोई अटैक होता है तो हमें किस तरह के स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्योंकि एट दैट टाइम हो सकता है कि उनके पास सिक्योरिटी रिसर्चर अवेलेबल नहीं हो। तो बेसिक जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो हमें अपने एम्प्लॉय को देनी चाहिए। Then we have encrypt our data and requires users to enable BIOS passwords. And then last, perform regular internal security audits and plans for improvement. ये जो मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं, मैंने वो पॉइंट्स कलेक्ट किए जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स मोर, ठीक है जी। सो देन वी हैव फिजिकल डिफेंस। जिस तरह से अभी मैंने बात की कि फिजिकली जो है ना सिक्योर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है, हमारे जो सर्वर्स रूम है, इस तरह से हमारे जो सिस्टम्स हैं, उसको भी सिक्योर, फिजिकली सिक्योर करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यहाँ पर मैंने कुछ बिल्कुल यूनिक चीज़ें मैंने ऐड की हैं। इज़ द अलार्म सिस्टम, उसके बाद इज़ देयर एनफ कंट्रोल ओवर द कम्स और गोज फ्रॉम द बिल्डिंग, कौन बिल्डिंग में आ रहा है, कौन बिल्डिंग से जा रहा है। क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी कि फिजिकली जो है ना, अभी हैकर्स जो अटैकर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम में आके इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद इज द सर्वर रूम सिक्योर। ऑब्वियसली सर्वर रूम की सिक्योरिटी हमें देखनी है। फिजिकल एक्सेस टू द कंप्यूटर विल गिव अ डेटा थीफ टू द अपॉर्चुनिटी टू डिसेबल पासवर्ड्स। इसी तरह से हमारे पास सॉलिड बिग रूम विद अ स्ट्रॉन्ग रूम टाइप डोर इज रिकमेंडेड। और प्रॉपरली हम देख रहे होते हैं इस लेयर में कि गेट्स हमारे सिक्योर है, गार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वीडियोस जिसको हम सीसीटीवी कैमरास के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देन वी हैव गन्स के, इसके थ्रू भी हम अपनी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी फिजिकल डिफेंस, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास जो है दैट इज पॉलिसी प्रोसीजर एंड अवेयरनेस के एक कंपनी। अच्छा, ये जो लेयर है ना, टोटली नॉन टेक्निकल है, ठीक है जी। इसको लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास एक लेयर है, इसको होना फर्स्ट में चाहिए था, लेकिन इसको हमने इसलिए लास्ट में रखा ताकि ये, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल चीज़ है। Policies, procedures, and awareness, the overall governing principles of the security strategy of an organization. Without this layer, the entire strategy fails, ठीक है जी। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि पॉलिसी सिक्योरिटी के बना रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी हमने ट्रेनिंग की बात की थी, अवेयरनेस की बात की थी, वो देनी चाहिए हमें। जो रिस्क, जो लेट सपोज हमें फ्यूचर की प्लानिंग्स करके रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई अटैक होता है तो किस किस तरह की स्ट्रेटजीज को हमने फॉलो करना है, किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो प्रॉपरली उसमें हम लीगल सारे हम यूँ कह सकते हैं कि कवानीन को भी मद्देनजर रख रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ और भी देख रहे होते हैं। सो दैट्स अबाउट दी पॉलिसी प्रोसीजर एंड अवेयरनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मैं कह सकता हूँ। सो यस, सो अल्लाह हाफिज़। अभी के लेक्चर के लिए, इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली सिटी हैव कैप्चर्ड द फ्लैग, कि एक अटैकर जो होगा वो किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को टेक ओवर कर सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो किस तरह से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकती है, जो जो फैक्टर्स, जिन जिन फैक्टर से एक अटैकर हैक कर रहा है, तो उन्हीं फैक्टर की सिक्योरिटी पे हम देखेंगे. सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? हेलो. Excuse me, sir. यस. यस प्लीज. Sir, there's a question. आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ाएंगे इस बूट कैंप में, उस पर ज़्यादा फोकस होगा, या नेटवर्क स्पेशलिस्ट जो होते हैं बंदे वो मोस्टली नेटवर्क एनालिसिस के बारे में पढ़ाते हैं, या आप कोई और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा फोकस करोगे इस बूट कैंप में? अच्छा, मेरा जो प्रैक्टिकल अभी है ना, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की टेस्टिंग पे भी हम काम करेंगे, उसके बाद वेब एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे थोड़ा सा, उस पे भी हमारा थोड़ा पोर्शन होगा. उसके बाद यस, उसके बाद एक यूज़र इंटरफेसेस, मतलब जो एक एंड यूज़र के लिए जो मतलब होते हैं ना वल्नरेबिलिटीज, उस पे भी फोकस करेंगे. जिसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, या सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि आएंगे जो अभी हमने डिस्कस की है. सर पर्टिकुलरली आप किस चीज़ के पेनिट्रेशन टेस्टर हो? मैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ. अच्छा, बिगनर्स को भी यही सलाह होगी ना कि वो पहले वेब ऐप से शुरू करें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बीइंग ए पेनिट्रेशन ओके टेस्टर, मैंने खुद वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था ये सारा, यू कैन से सफर जो मेरा था. ओके, लेट्स स्टार्ट द थिंग. श्योर आपको सर. जो हाउ सॉरी, मच एक्सपीरियंस्ड आर यू सर? आई थिंक 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में काम स्टार्ट किया था. मैं इससे पहले मैं लोगों के अकाउंट्स देखता था, चल क्या रहा था एक्चुअली इन 2016. उस वक्त अगर पाकिस्तान और इंडिया के साइबर वॉर नो, काफ़ी. आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर. यस यस. मैंने कभी स्टार्ट किया, मैं आपको वो जर्नी बता रहा हूँ, अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे तो एक्चुअली. नो सर, प्लीज गो ऑन प्लीज, वी आर इंटरेस्टेड सर. 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, जब पाकिस्तान और इंडिया के साइबर वॉर चल रहा था, और मैं देख रहा था कि वेबसाइट्स हैक हो रही थी आपस में, काफ़ी एक वॉर्स टाइप का चल रहा था. तो उस वक्त मैं काफ़ी इंथुसियास्टिक हो गया था कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है. देन आई स्टार्टेड टू डू रिसर्च ऑन इट कि किस तरह से काम हो रहा है ये. देन एक्चुअली मेरा सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. मेरा, आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? हेलो. लेट मी चेक अगर मेरी Yes स्क्रीन sir, से it's visible. विजिबल. Yes, sir, that's visible. ओके. अच्छा जी, हम जो क्लास, सॉरी, मैं क्लास का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मेरा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आज जो हम एक CTF परफॉर्म करेंगे, दैट इज लैम्पायो. सो लेट मी स्टार्ट द थिंग. ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ एक्चुअली वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हम इसको अटैक करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद उन सारे सिनेरियोज को देखेंगे कि किस तरह से एक अटैकर अटैक कर सकता है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से उसको सिक्योर कर सकती है. सो यस, दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. व्हाट इज द लॉगिन आईडी, व्हाट इज द पासवर्ड, ठीक है. लेट सपोज कि जो है ना, ये मैं अटैकर हूँ, और ये मैं अटैकर जो एक्चुअली इनके नेटवर्क में मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक है जी. और मैं इस सिस्टम को जाके अटैक करने वाला हूँ.
अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिस फोल्डर में हम सारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होंगे. लेट मी क्रिएट अ फोल्डर. अच्छा, मैं एक छोटा सा सर्वे कर लेता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू डिड यूज CTFs, किसने अब तक CTF प्लेस किए हैं. ज़रा काइंडली मुझे उसके थ्रू बताइएगा, कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि मैं इस बात को ऑब्जर्व कर सकूँ कि मुझे इसको ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि आप इजी वे में लूँ या इसको मैं हार्ड वे में लूँ. कैन यू प्लीज लेट मी नो हाउ मच ऑफ यू डिड यूज CTFs. Sorry, I'm not getting any comments. So So I guess there's an issue in chat box. कोई टाइप नहीं कर पा, I mean मैं भी टाइप नहीं कर पा रहा. कोई परमिशन अलाउंस का इशू होता है क्या टीम्स में? Sir Shamil, can you please help them out for that? नहीं नहीं, everyone can type it out. I think so. It's from your end. You can just sign out and you can grab sign joining back in the meeting. ओके ओके, आई गॉट सम कमेंट्स. ठीक है, तो इसका मतलब मोस्टली मैंने बात को ऑब्जर्व किया कि काफ़ी कम लोगों ने यूज़ किया हुआ. ठीक है, तो मैं इसको इजी लेने की कोशिश करता हूँ. ठीक है जी. सो सिनेरियो में अगेन रिपीट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज मैं एक अटैकर एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हूँ और उसी नेटवर्क में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक और मशीन है. आई डोंट नो अबाउट कि ये वो मशीन क्या है, उसके लॉगिन आईडीज़ क्या है, किस तरह से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, पर आई विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना जो नेटवर्क है उसको मैं पेनिट्रेट करता हूँ कि मेरे इस नेटवर्क में कौन कौन से कंप्यूटर या मशीन्स कनेक्टेड है. लेट मी चेक कि मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा. ओके, अच्छा जी, मैंने एक्चुअली फोर्टी स्पोर्ट्स अपना मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ था, तो मे भी थोड़ा सा इशू आ रहा है. लेट मी चेक दी कनेक्शन अगेन. मैं इसको ज़रा शट डाउन कर दूँ और
एक्चुअली मैंने नेटवर्क टाइप चेंज कर दी है क्योंकि हो सकता है कि मैंने मोबाइल फ़ोन से मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग प्रॉब्लम विद इंटरनेट। लेट्स सी कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर काम करेगा तो फिर हम जो हमारा वल्नरेबल वेब ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी ऑन कर लेंगे। एटलीस्ट दिस शुड वर्क नाउ। मैं इधर चेक कर लेता हूँ। Oh my god, it's not working. लेट मी चेक इट अगेन। मैं एक और मरतबा दूसरे नेटवर्क टैब से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट। अगर इस बार भी मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ तो वी विल बी डूइंग अ लिटिल डिसीजन। Yes, it's working. Let me check again. So if it's working, मैं अपने
इसको भी नेट में रख के ऑन कर लेता हूँ. So hope it's gonna working. Start. Yes, it's connected. अच्छा जी, सबसे पहले हम इस जो हमने फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया था उस पे चलते हैं और उस डायरेक्टरी के थ्रू हम कमांड एग्जीक्यूशन करवाएंगे. So first command we have to use is net discover. This is a tool जो कि हम अपने नेटवर्क में कितने डिवाइस कनेक्टेड है उसको चेक कर रहे होते हैं. So net discover I what I'm doing. It will display all the networks, all the devices which is connected to the same network. Let's wait for some while. I think I'm still getting some issues with my network. Actually, I was supposed to use Bridge network to perform this penetration testing. लेकिन मैंने नेट कनेक्शन किया हुआ है तो हो सकता है कि जो ना अभी भी मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है ये. शमील, व्हाट इफ अगर हम इस प्रैक्टिकल सेशन को बाद में दोबारा परफॉर्म ना करें? शमील, आर यू देयर? यस. क्योंकि एक्चुअली आई डोंट हैव वायरलेस कनेक्शन ना, तो मैंने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को कनेक्ट किया हुआ है. सो दैट्स वाई हो सकता है कि मेरे वर्चुअल मशीन में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का कोई इशू होगा. पिंग करके चेक कर लो 8.8.8.8 पे के पिंगिंग हो रही है आपकी. और दूसरी बात, आप तो मेरे ख्याल में प्राइवेट नेटवर्क पर हो तो चेक करो क्या एक्सेस हो रहा है. एनमैप से पिंग स्कैन करके देखो. एक्चुअली जो हमारा ये जो मेरे पास वल्नरेबल एप्लीकेशन था ना, इट वाज सपोज टू यूज विद ब्रिज नेटवर्क, और ब्रिज नेटवर्क के लिए लाजमी मुझे एथरनेट कनेक्शन चाहिए ना. सो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में ब्रिज तो ये चीज़ है ना कि दोनों मशीन आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी. आपने कहीं ब्रिज नेटवर्क तो इनका चीज़ नहीं कर दिया है. चेक करो इनके वर्चुअलाइज प्रॉपर्टीज में जाके. और दूसरी बात, ये कमांड 1 मिनट इधर आना, फाइल पे न्यू करना. हाँ, यहाँ पे इफ कॉन्फिग लिखो. इसके आईपी चेक करना. हाँ, राइट sudo su फर्स्ट. ये कनेक्ट लेकिन नो, आईपी check. आईपी चेंज है आपकी ना. आईपी चेंज हो गई है. अब एक काम करो, लिखो nmap sudo से sudo nmap. हाँ, We can do as well from the sn end. sn dash sn sn n n yes. 10.0.15 या 10.0.2
dot 15 sorry, slash just 24. Two dot yeah, सही है. Let's see. yeah. Yeah, so ये आप हैं IP एड्रेसेस, इनमें से चेक करना पड़ेगा कि ये मशीन कौन सी है. Okay, चलिए. So I got this. इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि what is this actually. मैं सारे नेटवर्क को बारी बारी चेक कर लेता हूँ. Yeah, that's all right. I think 15 तो काली की ही IP थी. ये हमारी थी. नहीं नहीं नहीं. हाँ, Check. इसके अलावा 2-3 और हैं, वो अगर एड्रेस होंगे. 2, 3, 4. You can just ping it. Two, three, four. No, it's still not working. हाँ आई नो. मुझे लग रहा है कि मेरे नेट एथरनेट का इशू चल रहा होगा ना, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे दोनों मशीन्स. So then I think we have to conduct it again जब मेरे पास प्रॉपर ना मैं इसको पूरा. Yeah, sure, जैसा मुनासिब लगे. So like if possible, can you do it tomorrow? Tomorrow is Sunday. Yes, मैं आपको आज रात तक इस बात की कंफर्मेशन कर दूंगा. ठीक है. चलें सही है तो we'll try to. Let me pay a last try again. Okay, let me pay a last try again. मैं Sure, आखिरी ट्राई कर sure, लेता हूँ कि hope ये थोड़ा काम कर ले. sure, sure. जुबैर, virtual box ओपन करना अपना. virtual box. Yeah, go to the properties. Here या नेटवर्क में चेक करो दोनों के अडाप्टर्स जो हैं वो सेम virtualize पे कनेक्टेड हैं या नहीं है. हाँ, मैंने दोनों को जो है ना एक्चुअली जो मेरे पास एप्लीकेशन थी ना उसको मुझे दोनों पे रखना था इंटर अपना ब्रिज अडॉप्टर पे. ठीक है. लेकिन अब ब्रिज अडॉप्टर के लिए जो है ना मेरे सिस्टम को ये उसकी स्पेशलिटी है कि मेरे सिस्टम को एथरनेट से कनेक्ट होना चाहिए था. लेकिन अभी मैंने मोबाइल फोन से इंटरनेट हॉटस्पॉट लिया हुआ है ना, तो ये भी दैट्स वाई इशू आ रहा है. ब्रिज में तो कनेक्ट नहीं हो रहा. अब नेटवर्क में जो है ना वो सारे नेटवर्क उठा नहीं रहा है ये. ये virtual box का इशू लग रहा है मुझे, इंटरनेट का नहीं है. ऐसा हो सकता है, एक काम करो, इसको दोनों को एक ही चीज पे रखो. हाँ, तो मैंने और उसके बाद दोनों को मैंने नेट में रखा हुआ है ना, फिर भी इशू आ रहा है इसमें. अच्छा, एक काम करना, अपना CMD खोलना है यहाँ पे. विंडोज की बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे पिंग करो 15 वाली IP पे. हाँ, ये फिर कल ही करवा लेना इसको ना, एनवायरनमेंट सेट करके. फिर हाँ, आई गेस यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा आपका. वो दोनों मशीन दोनों अलग नेटवर्क पे लग रही है मुझे. ये कनेक्ट नहीं हो रहा है. आपका होस्ट ही मतलब आपका PC ही आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं है. मुझे लग रहा है वो दोनों मशीन भी आपस में कनेक्टेड नहीं है. सो ये मोस्टली इसका इंटरनल नेटवर्किंग का ही कोई इशू लग रहा है मुझे वर्चुअलाइजेशन के अंदर. एग्जैक्टली मुझे भी ऐसे इशू लग रहा है. सो लेट्स डू इट अगेन किसी और डे स्पेसिफिक करके उसमें फिर इसको दोबारा कंडक्ट करते हैं. चले सही है. तो ऐसा करते हैं कि गाइस आप लोग ऐसा करें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप लोग उसमें ऐड होते जाएं. तो जैसे ही हम लोग ये रीशेड्यूल करेंगे ये आज का वर्कशॉप, विल अपडेट यू गाइस ऑन द ईमेल एज वेल एंड या विल अपडेट यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. टिल देन आप लोग ऐसा करें कि आप लोग ये फीडबैक फॉर्म फिल कर दें ताकि आज का जो ये सेशन है ये जाया ना जाए एटलीस्ट. राइट. तो यह फीडबैक फॉर्म मैं खुला रखूंगा 10 मिनट के लिए.
उसके बाद फीडबैक फॉर्म अपने आप बंद हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है ये फॉर्म भर दें, फिलअप कर दें, ताकि आप लोगों के नाम हमारे पास आ जाए। कौन कौन आज यहाँ पर है मौजूद, तो उन लोगों को जो है हम इवेंट जब रीशेड्यूल करेंगे तो उनके लिंक्स हम भेज देंगे। वेल इंशाल्लाह जैसे ही हम अपना इवेंट रीशेड्यूल करेंगे तो आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, डोंट वरी। And due to this technical difficulty, we are postponing this event, this workshop, this part of this workshop of cybersecurity boot camp arranged by Student Ambassadors Club Jamshoro. Yeah, so till now I've got only 3 responses. Guys, only 7 minutes are left for filling up this form. Hurry up, hurry up, hurry up. Clock's ticking. सर ये खुल नहीं रहा चैट बॉक्स जी तो नहीं खुल रहा, कहाँ से लिंक है सॉरी, सर? लिंक कहाँ पे दिया है आपने? मैंने चैट में लिंक दिए है सर वो नहीं खुल रहा। सर। खुल रहा है सर, सबके पास खुल रहा है। दोबारा सिंपली बस आपने क्लिक करना है और ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। जस्ट टच इट। गाइस, दो बार फॉर्म भरने से आप लोगों को 2 बार सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा। और आप Excuse. लोगों का सॉरी, So can we ask questions right now? या Is there any leisure time left? Zubair bhai, should we take questions? Yes, okay. Okay, great. Guys, So yeah, you can okay. ask questions. Please. So what were you up wait, to? wait, wait, ये wait, CTF wait. का मोटिव क्या था? लाइक